trigonometrical function, trigonometrical functions. जनरल मेथड, एक्चुअली जनरल मेथड है ये, मेथड जनरल मेथड है ये। और ये एक्चुअल रूल्स जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन का ही है, ठीक है। split the trigonometrical functions, split the trigonometrical functions into half, split the trigonometrical functions, split the trigonometrical not functions, angles, trigonometric, split the trigonometrical angles into half with the help of number 1 sin square x by 2 plus cos square x by 2 is equal to 1. Number 2 sin x is equal to 2 sin x by 2 cos x by 2. Number 3 cos x is equal to cos square x by 2 minus sin square x by 2. Clear? This is one number, and number 2 is एक्चुअली इसी का ही पार्ट है ये। एक नंबर ये है, सेकंड स्टेप 1, स्टेप 2 डिवाइड न्यूमरेटर and denominator with cos square x by 2. Number 3 put v is equal to tan x by 2. The above method must be followed. The above method must be followed when numerator contains dx only, while the denominator contains sin x or cos x or both with free constants. हाँ, रूल्स फॉर मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन में यदि स्प्लिट मेथड है ये, स्प्लिट द ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स इनटू हाफ विद द हेल्प ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1. एंगल को हाफ कर देंगे. साइन एक्स इज इक्वल टू 2 sin x by 2 cos x by 2 cos x is equal to cos square x by 2 minus sin square x by 2. Divide numerator and denominator with cos square x by 2
put v is equal to 10x by 2. The above method must be followed when numerator contains dx only, while the denominator contains sin x or cos x or both with free constants. So this is the method I have written so far in the method of substitution of integration. Now you just see, I am rubbing it and giving some sums, doing some sums on this. You just see here some examples I am giving. Cosec x dx. Okay, so this will be actually dx divided by sin x, and that is equal to dx divided by 2 sin x by 2 cos x by 2. Now you divide numerator and denominator with cos square x by 2. We have here sec square x by 2 dx, and this will be 2 tan x by 2. Here we shall put b is equal to tan x by 2. Okay, so differentiating both sides with respect to x, we have dv by dx is equal to 1 by 2 sec square x by 2. So dv is equal to 1 by 2 sec square x by 2 dx. So this will be, in place of sec square x by 2, actually half sec square x by 2 in this way. आप लोग समझने के लिए इसको हम लोग इस वे में कर दे रहे हैं, 1 by 10 x by 2, और इसको कर दे रहे हैं 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2, और ये dx 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2 जो है dv है, और ये v है. तो ये एक स्टेप यहाँ पे ये देखिए 1 by v, और ये हो जाएगा 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2 dx के बराबर dv हो गया. तो ये dv हो गया. क्लियर. इसका डेरिवेटिव तो 1 आ ही रहा है, इसका डेरिवेटिव 1 है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जा रहा है. तो ये हम लोग लिखेंगे log mod of v plus c. Return the value of v here. The value of v is, that will be log, v का वैल्यू है log mod of 10 x by 2 plus c. That is the final answer so far. ये एक सम हुआ, इसी पे एक एग्जांपल सम और बता दे रहे हैं. ठीक है. एक्चुअली cosec x dx इज इक्वल टू dx बाई साइन एक्स. साइन एक्स का सम मल्टीपल का फार्मूला 2 sin x by 2 cos x by 2, जैसा कि लिखे हैं रूल्स में अभी. से ये डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos स्क्वायर x by 2, तो sec स्क्वायर x by 2 dx बचा, और नीचे 2 tan x by 2 बचा, 2 tan x by 2 बचा. 10 x by 2 को यदि v पकड़ते हैं तो dv by dx इक्वल टू 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2, dv इक्वल टू 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2 dx हो गया. तो ये 1 by, इसको चूँकि इस फॉर्म में रखने के लिए हम ऐसा किए 1 by 10 x by 2, और ये 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2 dx. तो 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2 dx के जगह पे 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2 dx के जगह पे dv लिख दिए यहाँ पे, और ये 10x by 2 इसको टू v लिखे. 1 by v इज इक्वल टू dv. चूँकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाता है, तो लॉग मॉड ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में रहे वो इंटीग्रेशन हो जाता है. तो यहाँ पे लॉग v का डेरिवेटिव 1 हो गया,
b का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जा रहा है, इसलिए log mod of b plus c, where c is the constant of integration, return into constant of integration, and now return the value of b. The value of b is 10x by 2, so I have returned the value of b here, log mod of 10x by 2 plus c. That is the final answer. Okay. Now say next term is here. I am going to make you understand. Next term will be sec x dx. Next term will be sec x dx. Okay. तो sec x dx को हम लोग लिख सकते हैं ये dx डिवाइडेड बाई cos x, और ये हो जाएगा मेरा dx डिवाइडेड बाई cos x को लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2. तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos स्क्वायर x बाई 2, वी हैव हियर sec स्क्वायर x बाई 2 dx, sec स्क्वायर x बाई 2 dx, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2. नाउ पुट v इज इक्वल टू 10x बाई 2, तो dv बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2. So this will be here, dv is equal to 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2 dx. तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअली ये पूरा पार्ट हो जाएगा, ये हो गया मेरा 2 dv इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाई 2 dx. ओके, तो ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 dv, ये हो गया मेरा 1 माइनस वी स्क्वायर, 10x बाई 2 इज इक्वल टू वी है, तो ये 2 बाहर फेंक देंगे, बाहर इंटीग्रल के बाहर हो जाएगा dv डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. ये फार्मूला होता है 2 स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फार्मूला 1 बाई 2 वे लॉग मॉड ऑफ ए प्लस एक्स, माने 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी प्लस सी. ठीक है, ये हो गया, ये इसका ये अलग है. ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ये 2a का a माने कितना हो गया यहाँ पे, a का मतलब 2 इंटू 1, a का वैल्यू तो 1 ही है ना, a का वैल्यू 1 है, इसलिए 2 इंटू 1 होगा यहाँ पे 2a. तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसका ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस 10 x बाई 2 और 1 माइनस 10 x बाई 2 प्लस सी. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस 10 x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 x बाई 2 प्लस सी. यानी कि 10a प्लस 10b का फार्मूला 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b, यानी कि ये कितना हुआ मेरा लॉग मॉड ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी. दैट्स ऑल. लॉग मॉड ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, log mod of 10 pi by 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी. दिस इज द फाइनल आंसर. हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं. sec x dx इज इक्वल टू sec x dx, तो sec x के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं dx डिवाइड बाई cos x,
कॉस एक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू. नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू वी हैव सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू. तो टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू वी यदि पकड़ते हैं तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू. डी वी इज इक्वल टू वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स. ये टू का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा टू डी वी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स. तो ये यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स के जगह पे टू डी वी हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा वन माइनस वी स्क्वायर क्योंकि टेन एक्स बाई टू इसको टू वी है. फिर टू इंटू डी वी डिवाइड बाई वन होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. फिर टू तो है ही है और ये वन बाई स्टैंडर्ड इंटीग्रल है वन बाई टू है लॉग मॉड ऑफ वन प्लस वी डिवाइड वन माइनस वी प्लस सी. फिर इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं वन को 10π/4 लिख सकते हैं यानी 1045 डिग्री का वैल्यू 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होगा. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10π/4 और ये प्लस 10x/2 और 1 माइनस 10 है मैंने 1 इंटू 10x/2 तो 1 की जगह पर 10π/4 लिख सकते हैं और 10x/2. ये फार्मूला होता है लॉग 10 π/4 plus x/2 plus c. This is the final answer. That's it.